Okay. So last in last class in last class we have studied about long division method, but there is a disadvantage. There is some disadvantages of long division method. वो disadvantage क्या है कि whenever we are going to find out the finite result, which is very much needed for any solution, because अगर मेरा solution finite नहीं हुआ तो I don't know up to which I have to solve. ठीक है, तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से मेरा पॉसिबल है नहीं, तो उसको क्या करेंगे, सो दैट्स व्हाई वी आर मॉडिफाई द inverse Z transform process, and we will adopt a process where some finite result can be obtained, and this method of finding out the finite result of inverse Z transform, we will use rest of three methods to find out the inverse Z transform. The methods are partial fraction method. Just a minute. Partial fraction method, residue method, and convolution method. So these are the method to find out the finite result. Okay, so until and unless the question asks itself to find out the inverse Z transform by using long division method, we will never do this, because it has indefinite result. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस रिजल्ट, प्रोसेस चलता रहेगा. सपोज किसी भी इक्वेशन को तुम्हें पता नहीं है कितना स्टेप तक तुमको वो प्रोसेस निकालना पड़ेगा, कितना स्टेप तक यू हैव टू मेक द कैलकुलेशन. सो अगर मैं डिटरमाइन नहीं हूं कि मुझे कितना इक्वेशन तक या कितना स्टेप तक मुझे इक्वेशन का आंसर निकालना है, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी मच टाइम टेकिंग एज वेल एज लॉन्ग प्रोसेस. ठीक है, सो until and unless question ask itself to do the long division method, we will not do this. Rather than we will go through these three methods, that is partial fraction method, residue method, and convolution method. So first of all, come to the partial fraction method. That is the second method, that is partial fraction method. In this method, what we will do, suppose x of z is given in the form of nz, that is numerator and denominator. Whatever the equation is given to you. Now we have to divide this into partial fraction, and then we will solve this. So before going to explain, I will take some example. Okay. First step is I have to represent the entire equation in this format. Then I have to calculate the value of this x of z by z. Okay. Now I am going to give you an example so that it will be very much clear to everyone. So taking the example, x of z equal to z square by z square by 1 minus az and z minus a. Okay, so that is the equation. Now I have to calculate it through partial fraction method. So first of all, I will write this equation, then represent the equation in this format, that is x of z by z. ठीक है, तो यहाँ पे अगर x of z, इस इक्वेशन को x of z by z के फॉर्मेट में इफ आई विल राइट, देन व्हाट आई कैन राइट, दैट इज z by 1 minus az z minus a. I can write this.
So it will be become the representation of x of z by z. इस फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. ये स्टेप तुम लोगों को याद रहना चाहिए. पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में वी विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन x ऑफ z इन द फॉर्म ऑफ x ऑफ z बाई z. अगर यहाँ पे तुम्हारा लेट इट बी 1 रहता, ठीक है, तो क्या होता? यहाँ तो z स्क्वायर है तो एक z स्क्वायर ले लिए. अगर यहाँ पे 1 रहता तो क्या होता? देन वी विल डिवाइडेड बोथ द इक्वेशन बाय z. सो ये हो जाता 1 बाई z, 1 माइनस ए जेड, z माइनस ए. तो by who can cook, I have to represent the entire equation by x of z by z. ठीक है. सो सिंस यहाँ पे z स्क्वायर है, सो यहाँ पे हम लोग को उतना मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड करना नहीं पड़ेगा. सो I can write this. So now the equation becomes like this. Now I have to divide the equation into two parts, like x of z by z equal to, let it be, यहाँ पे मेरा az और यहाँ पे z है. ठीक है. तो नेक्स्ट इज डिनोमिनेटर पार्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन दिस a z माइनस b और z माइनस c. दैट इज z एक इंडिविजुअल टर्म होना चाहिए. सेकेंड पार्ट, सेकेंड स्टेप. ठीक है. बट यहाँ पे देखो z के साथ a मल्टीप्लाइड है, तो इसको इंडिविजुअल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस ए जेड, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई ए. सॉरी एक मिनट, यहां से हम a को निकाल दे रहे हैं. a इंटू 1 बाई ए माइनस जेड. कैन आई राइट दिस? कैन आई राइट दिस? कैन आई राइट दिस? क्योंकि मुझे इंडिविजुअल z निकालना है नीचे डिनोमिनेटर पार्ट को. z माइनस समथिंग, इंडिविजुअल z. ठीक है. तो z यहाँ पे इंडिविजुअल है, सो 1 माइनस ए जेड को हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में. यस और नो? यस और नो लिख सकते हैं कि नहीं? ओके. सो नाउ नेक्स्ट इज I have to write the equation in this format. So यहाँ पे क्या होगा? z इंटू a 1 बाई ए माइनस जेड, जेड माइनस ए. सो देखो ये फॉर्मेट अभी तक सेटल नहीं हुआ. z माइनस के फॉर्मेट में होगा, z माइनस समथिंग के फॉर्मेट में होगा, बट यहाँ पे समथिंग माइनस z है, तो उसको उस फॉर्मेट में देने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस टर्म को बाहर निकाल देंगे. So z minus 1 by a, z minus a. So now it can be written as minus z by a. नीचे सिर्फ z minus 1 by a, z minus a के फॉर्मेट में रहेगा. ठीक है. नाउ इस फॉर्मेट में हम पूरा इक्वेशन को रखेंगे ताकि नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट जो है इज इन द फॉर्म ऑफ z माइनस ए, z माइनस बी, z माइनस सी. ठीक है. इस फॉर्मेट में रहे और z का जो टर्म है वो इंडिविजुअल टर्म हो. ठीक है. तो ये अब मेरा देखो यहाँ पे नीचे वाला डिनोमिनेटर पोर्शन z माइनस समथिंग, z माइनस समथिंग इस फॉर्मेट में आ चुका है. ऊपर वाला पोर्शन जो भी आए, डोंट वरी अबाउट दिस. ठीक है. नीचे को अरेंज करने के लिए मुझे ऊपर वाला पोर्शन चेंज करना पड़ेगा. सो डोंट वरी अबाउट द न्यूमरेटर पार्ट, आई हैव टू वर्क ऑन डिनोमिनेटर पार्ट. सो नाउ दिस इक्वेशन नाउ कैन बी separated by taking some constant value, that is partial fraction. So let it be 2 into 3 into 5. ये एक इक्वेशन है. ठीक है. 3 into 5, let it be. So I can write C1 by 3 plus C2 by 5. इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं. That is 5C1 plus 3C2 equal to 2. Can I write this from this?
अगर मैं इसको इंडिविजुअली दो हिस्सों में बांट दूं, ठीक है, तो आई कैन राइट दिस 2/3 एंड 2/5, सो आई कैन राइट C1/3 प्लस C2/5 इक्वल टू 2/3 इंटू 5। आई कैन राइट दिस बिकॉज डिनोमिनेटर पार्ट में क्या होगा, 3 इंटू 5 आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 3 इंटू 5 ही आएगा, 3 इंटू 5। समझ में आया? यस सर। ओके, नाउ मैं इसको तोड़ दूंगा दो हिस्सों में। सो फर्स्ट पार्ट C1 बाई डिनोमिनेटर पार्ट 1 Z-1/A, ऊपर कुछ भी रहे कोई मैटर नहीं करता, बस हम उसको तोड़ देंगे दो हिस्सों में, प्लस C2 Z-A, दो हिस्सों में बट गया, दो डिनोमिनेटर है तो दो हिस्सों में बटेगा। अगर 3 डिनोमिनेटर होता, लेट इट बी, अगर यहाँ पे Z-2A रहता तो क्या होता, प्लस C3/Z-2A। जितना नंबर ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट रहेगा उतने हिस्सों में हम इसको बांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्ट है, तो C1 एंड C2 विल बी टेकन। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इज आई हैव टू सॉल्व दिस। पहले मैं इसको फ्रेश लिख लेता हूं। मेरा जो इक्वेशन आया है दैट इज xz बाई z इक्वल टू C1 बाय Z-1/A प्लस C2 Z-A। नाउ मैं अब लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यहाँ पे दो मेरा डिनोमिनेटर पार्ट है, एक Z-1/A और एक है Z-A, ये दोनों है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं C1 निकालूंगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C1, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। जब C1 निकालूंगा, C1 के नीचे में जो पोर्शन है, दैट पोर्शन विल बी मल्टीप्लाइड विथ x of z by z. That means Z-1/A will be multiplied with this portion. This is x of z minus z. Sorry, x of z by z. This. So C1 के नीचे वाला पोर्शन क्या है, Z-1/A. So Z-1/A multiplied with x of z by z. So यहाँ पे x of z by z का वैल्यू क्या है, Z/A. Next is Z-1/A एंड Z-A। तो देखो ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं कटेगा। सो दिस वन एंड दिस वन विल कैंसल्स आउट। सो Z माइनस Z बाई A, Z माइनस A, ठीक है। नाउ या इसका ये हो गया C1 का वैल्यू। तो C1 के नीचे वाले पोर्शन में क्या है, Z-1/A। सो आई कैन से 0 क्या होगा, पोल क्या होगा, इसका पोल का वैल्यू दैट इज 0। सो दैट इज Z इक्वल टू माइनस ए, सॉरी 1/A। Z इक्वल टू 1/A, पोल का वैल्यू कहाँ पे हो रहा है, C1 जिसके साथ एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे हम Z का वैल्यू 1/A रख देंगे। तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1/A इंटू 1/A इंटू A टू 1/A माइनस A। तो इसका इंटर वैल्यू क्या होगा, 1/A स्क्वायर बाय 1 माइनस A स्क्वायर बाई A। सो A कट जाएगा। सो नाउ इट विल बी -1/A 1 माइनस A स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया C1 का वैल्यू। C2 का वैल्यू क्या होगा, C2 में देखो एसोसिएटेड कौन है, Z-A। सो Z-A विल बी मल्टीप्लाइड विथ x ऑफ Z बाई Z एट, मैं शुरू से ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं स्टेप समझा रहा था इसीलिए बाद में लिखा हूँ, बट यहाँ पे शुरू से लिख दे रहा हूँ। एट, इसका पोल का वैल्यू क्या है, Z माइनस A इक्वल टू 0, सो Z इक्वल टू A। सो Z इक्वल टू A। सो अब क्या होगा, Z माइनस A, x ऑफ Z का वैल्यू Z बाई A बाई Z माइनस 1/A, Z माइनस A, इट विल बी कट, cancels out, Z equal to A.
सो z इक्वल टू ए अगर हुआ तो माइनस ए बाई ए माइनस 1 बाई ए, सो दिस इज minus 1 and this is a square minus 1 by a. So इसका अल्टीमेट वैल्यू क्या आएगा, C2 इक्वल टू माइनस ए बाई ए स्क्वायर माइनस 1. सो आई कैन राइट इट ए बाई 1 माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, समझ में आया? यहाँ से C1 C2 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें, ध्यान से देखो. अगर समझ में नहीं आया तो बोलो, मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन बिना समझे यस सर या ठीक है मत बोलो. ठीक है, सर इसमें थोड़ा डाउट है सर, कोई एग्जांपल देके बता दीजिए ना एक बार. ठीक है. ऑलरेडी ये खुद ही एक एग्जांपल है. ठीक है, मैं और एक एग्जांपल देके तुम लोगों को बता रहा हूँ. ठीक है, एक मिनट. एक मिनट. ठीक है, मैं इसको कंप्लीट करूंगा. पहले मैं दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ. ठीक है, लेट इट बी. और एक एग्जांपल ले रहा हूँ. टेक इट x of z इक्वल टू 8z माइनस 19 z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6. ये मेरा इक्वेशन है. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट x of n. So how I will find out x of n? How I will find out x of n? So first of all, as per the norms, I have to make it x of z by z. तो इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ये फॉर्मेट है. ठीक है, नाउ मैं इसको अब इस फॉर्मेट में लाऊंगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एनी आइडिया? सर ऊपर z दैट इज 1 बाई से जेड. 1 बाई जेड हम अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे, इस साइड में भी मल्टीप्लाई कर दे और इस साइड में भी मल्टीप्लाई कर दे, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा. यस और नो? यस सर. पहले इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश मत करो, क्योंकि पहले ही अगर तुम कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाओगे, दैट मींस पहले इक्वेशन को लेकर ज्यादा सोचने लगोगे तो स्टेप गलत हो जाएगा. सिंपल है, x ऑफ z बाई जेड लाना है तो पहले 1 बाई जेड से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को. ठीक है, अब अगर इक्वेशन सॉल्व हो गया, z कैंसिल आउट हो गया तो वेल एंड गुड. अगर नहीं हुआ तो उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे. तो नाउ इस ये इक्वेशन विल लुक लाइक दिस, माइनस 19 z इंटू जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6. यस और नो? क्योंकि सिंपली 1 बाई जेड मल्टीप्लाई हुआ. समझ में आया? यस सर. नाउ इस पोर्शन को मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर पार्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ z माइनस a, z माइनस b, z माइनस c. सो पहला मेरा टर्म मिल गया z, दैट मींस z माइनस 0. यस और नो? z माइनस 0, दैट इज a वैल्यू इज 0, सो दैट इज z. तो पहला टर्म मिल गया. दूसरा टर्म मिलने के लिए क्या करना चाहिए, मिडिल टर्म फैक्टर यूज करो. z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6. इसको क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2z प्लस 6. सो दैट मींस z माइनस 3 minus 2 z minus 3. So z minus 3 z minus 2. Can I write this instead of z square minus 5z plus 6? So now write the entire denominator in this format. न्यूमरेटर को लेके हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रख देंगे. z इंटू z माइनस 2 z माइनस 3. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, आई हैव टू ब्रेक इट. यहां पे कितना पार्ट है डिनोमिनेटर का, हाउ मेनी पार्ट्स इन डिनोमिनेटर? 3 पार्ट. सो आई हैव टू ब्रेक इट इनटू 3 पार्ट. c1 by z प्लस c2 z माइनस 2 प्लस c3 z माइनस 3. समझ में आया यहां तक? यस सर. नाउ C1 निकालना है. C1 निकालने के लिए C1 के साथ एसोसिएटेड डिनोमिनेटर कौन है, Z. तो Z के साथ मल्टीप्लाई कर दो x ऑफ Z बाय Z को.
एट z का पोल कितना है, C1 में पोल कितना है, z माइनस 0 इक्वल टू 0, सो z इक्वल टू 0 है कि नहीं। इसका पोल क्या है, पोल हम लोग निकालते थे ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 इक्वल टू पोल। ये पहले देख लो पोल ऑफ 0, एक मिनट रुको, पोल ऑफ 0 का फॉर्मूला देखो, है क्या नहीं, यस और नो। पोल कैसे निकालते हैं किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का, दैट इज एक्स ऑफ जेड बाई जेड, ये एक ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जीरो और पोल कैसे निकालते हैं पहले बताओ, जीरो कौन सा पोर्शन को निकालते हैं, मीटर वाले से 0 निकालते हैं, और नीचे वाले से पोल, डिनोमिनेटर से। हाँ मतलब सर ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उससे सर हम लोग जीरोस निकालते हैं, हाँ और डिनोमिनेटर मतलब क्योंकि लोअर पोर्शन हो गया उससे हम लोग वोल्ट्स निकालते हैं। पोल्स निकालते हैं। तो पहला जो C1 बाई जेड है, ये एक ट्रांसफर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, इसका पोल कैसे निकलेगा, दैट इज नीचे वाला पोर्शन z इक्वल टू 0, टोटल जो नीचे वाला पोर्शन उसको 0 करते हैं तभी पोल आएगा, है कि नहीं। यस सर। देखो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, दैट इज z बाई p, ये याद रखना z बाई p, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, बाकी सब पार्ट आप भूल जाओ, फर्स्ट पार्ट क्या है, C1 बाई जेड, सो यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट क्या है, जीरो क्या है इसका, इक्वल टू 0, अगर ये हम निकालेंगे तो इसका 0 निकलेगा, 0, और d बाई डी जेड इक्वल टू 0 अगर निकलेगा तो ये पोल्स निकलेगा, ठीक है। तो इन दिस पोर्शन पोल का वैल्यू क्या है, dz इक्वल टू 0, सो z का वैल्यू यहाँ पे क्या है, सॉरी dz का वैल्यू यहाँ पे क्या है, z है, इक्वल टू 0, आ रहा है कि नहीं। यस सर। ओके तो C1 हम जब निकालेंगे तो C1 का पोल निकालेंगे कि C1 का पोल कहाँ पे है, तो C1 का पोल इक्वल टू Z इक्वल टू 0 है, तो एंटर वैल्यू Z इक्वल टू 0 रहेगा, और सिंपली जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है, C2 C3 भूल जाओ। नाउ इसको अगर हम Z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ रहा है, दैट इज जेड जेड कैंसिल हो जा रहा है, तो एक्स ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू 0 आ रहा है। नाउ एक्स ऑफ जेड का वैल्यू क्या है, मुझे इक्वेशन में दे दिया गया है, दैट इज 8z माइनस 19 बाई जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 जेड इक्वल टू 0, सो जेड इक्वल टू 0, अब जेड इक्वल टू 0 पुट करो, इसका वैल्यू कितना आएगा, जेड जहां पे है वहां पे 0 पुट कर दो, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -19/6, गुड। तो ये हो गया C1 का वैल्यू। सिमिलरली हम लोग C2 का वैल्यू निकालेंगे, C2 के साथ एसोसिएटेड कौन है, डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, z माइनस 2, सो z माइनस 2 को हम x ऑफ z बाई z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एट z का वैल्यू क्या रहेगा, इसका डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल टू 0, दैट मीन इसका जो पोल है उसमें z का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो z इक्वल टू 2 आ रहा है इसका पोल का वैल्यू,
सो नाउ इसको हम कैलकुलेट करेंगे. सो एक्स ऑफ जेड बाई जेड क्या है, हम नॉर्मल सिंपली करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जेड जेड कट जा रहा है, यहाँ पे जेड जेड नहीं कटेगा. तो जेड माइनस टू टर्म है, तो ये टर्म देखो यहाँ पे है, तो इसको हम क्या करेंगे, z minus 2 multiplied with 8z minus 19 z minus 2 z minus 3. So z minus 2 z minus 3 cancels out, z equal to 2. Now what will be the value at z equal to 2? कितना आएगा, 8 into 2 that means 16 by minus 19. So इसका वैल्यू आएगा -3 और 2 into -1. So -2 that is -3 -2 that is 3 by 2. सबका वैल्यू सेम आया. Yes, sir. नाउ कैलकुलेट C3. अब C3 निकालो. नाउ C3 देखो कितना आ रहा है. C3 के साथ एसोसिएटेड डिनोमिनेटर कौन है, Z minus 3. So Z minus 3 multiplied with x of z by z at z equal to 3. इसका पोल 3 है. तो नाउ निकालो कितना वैल्यू आ रहा है. मीन्स यहाँ से लिखेंगे z minus 3 with 8z minus 19 z minus 2 z minus 3 at z equal to 3. कैंसल आउट हो जाएगा. नाउ 5/3 आ रहा कितना आ रहा है, है, 5/3. 5/3. गुड. तो C1 is minus 19 by 6, C2 3 by 2 and C3 equal to 5/3. Okay. Now put that value in this equation, in the equation. So मेरा इक्वेशन क्या है, x of z by z equal to C1 by z plus C2 z minus 2 plus C3 z minus 3. Now put that value. C1 equal to minus 19 by 6 z, ठीक है, plus 3 by 2 z minus 2 plus, sorry, हाँ, plus 5 by 3 z minus 3. ठीक है, ये आ रहा है, yes or no? Yes, sir. Now again I have to arrange this equation x of z. अब x of z का वैल्यू क्या होगा, अगर x of z by z का वैल्यू ये है, तो x of z का वैल्यू क्या होगा, बोथ साइड z को मल्टीप्लाई कर दो. तो बोथ साइड अगर z को हम मल्टीप्लाई कर दें तो z इंटू माइनस 19 by 6z प्लस z इंटू 3 by 2 z minus 2 plus z into 5 by 3 z minus 3. So देखो तो आएगा minus 19 by 6 plus 3z 2 into z minus 2 plus 5z 3 into z minus 3. ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन आ रहा है. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया. सर एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर एक डाउट है सर. बोलो. सर यहाँ पे जो अभी हम लोग z मल्टीप्लाई किए दोनों साइड, तो सर वो क्यों किए, मतलब दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई उसको करके सिंप्लीफाई करने के लिए. में लाना है, x of z फॉर्मेट में लाना है, क्योंकि मुझे फाइनली फाइंड आउट करना है x of n. x of n को फाइंड आउट करना है. मुझे पता है x ओके of सर. n का z इनवर्स रहता है, z ट्रांसफॉर्म रहता है x of z. तो x of z का इनवर्स z ट्रांसफॉर्म शुड बी x of n. यस और नो?
यस सर। तो यहाँ पे देखो x ऑफ z माइनस जेड है, इसका z ट्रांसफॉर्म इनवर्स z ट्रांसफॉर्म हमको पता नहीं है, तो हमको सिर्फ पता है कि x ऑफ z को अगर हम x ऑफ n को अगर हम z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो देगा x ऑफ z, और x ऑफ z को इनवर्स करेंगे तो x ऑफ n मिलेगा। तो इस फॉर्मेट के लिए मुझे फिर से x ऑफ z यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं z को मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड में, ठीक है, हर एक कैलकुलेशन में। दैट्स व्हाई फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, x ऑफ z बाई z पहले निकालना पड़ेगा, ताकि अंत में जाके हम सिर्फ एक z को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे x ऑफ z का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ओके सो सर, नाउ थैंक यू इसको सर। अगर हम अरेंज करेंगे तो 19/6 प्लस 3/2 इंटू 1/1 माइनस 2z इनवर्स प्लस 5/3 इंटू 1 माइनस 1/z, सॉरी 5/3 आ गया तो 1 माइनस 3z इनवर्स, ये आएगा इस फॉर्मेट में, ठीक है। सो नाउ इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन प्रीवियस क्लासेस मैंने तुम लोगों को z ट्रांसफॉर्म दिया था, दैट इज a ऑफ a टू द पावर n un, इसका दिया था z ट्रांसफॉर्म। ये सुन लो, देखो अगर नहीं दिया था तो अभी देख लो, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट तुमको याद रखना पड़ेगा, a टू द पावर n un। अगर x ऑफ n इक्वल टू a टू द पावर un है तो इसका z ट्रांसफॉर्म निकालो, x ऑफ z इक्वल टू समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n z टू द पावर माइनस n। सो यहाँ पे x ऑफ n क्या है, a टू द पावर n और un मतलब ओनली पॉजिटिव एक्सिस 0 टू इंफिनिटी। सो हम इसको लिखेंगे n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a टू द पावर n एंड z टू द पावर माइनस n। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a टू द पावर माइनस 1, सॉरी a टू द पावर a इंटू z टू द पावर माइनस 1 टू द पावर n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? यस और नो? ओके, नाउ इसको समेशन क्या होगा, मैंने एक दिखाया था तुम्हारा जब जेट ट्रांसफॉर्म हुआ था, मैंने एक फॉर्मूला भी दिखाया था कि 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू, ऐसा एक दिखाया था ना। दैट इज, देखो टू द पावर n है, दैट मीन्स ये, अब इसको r के साथ रिप्लेस करो, सो समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी r टू द पावर n, इसका समेशन क्या होगा, 1/1 माइनस r, है कि नहीं? तो एंटायर समेशन क्या होगा, दैट इज 1/1 माइनस आर के बदले ये वैल्यू a इंटू जेड टू द पावर माइनस 1। सो नाउ ये चीज को याद रखना, ठीक है, एंटायर के a n u n will be z transform and it will give 1 minus a minus z, a into z to the power minus 1। नाउ देखो ये चीज को हम लोग कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा, मैं फिर से इसको लिखूंगा, फिर से लिखूंगा x ऑफ z इक्वल टू 19/6 माइनस 19/6 प्लस 3/2 3/2 into 1/1 minus
2 into z inverse minus plus 5 by 3 1 by 1 minus 3 into z inverse। ये हुआ कि नहीं? ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। नाउ ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन देखो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई z का फॉर्मेट है नहीं, सो ये क्या होगा, -19/6 एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पे देखो 3/2 कांस्टेंट टर्म है। नाउ ये वाला पोर्शन, ठीक है, अब मैं x ऑफ n लिखूंगा, x ऑफ n, ये 0 है तो ये नॉर्मल रहेगा। नाउ ये वाले पोर्शन को देखो, 1 माइनस 2 इंटू जेड टू दी पावर -1, इसके साथ इसको कंपेयर करो, ठीक है, इसके साथ इसको कंपेयर करो। तो अगर कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ रहा है, 2। 2। सो 2 a का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, सो दैट मीन्स 2 टू द पावर n un प्लस 5/3। अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो a का वैल्यू क्या है, 3। 3, सो 3 to the power n un। So that is the inverse z transform of your x of z। और एक बात यहाँ पे सिंस 0 है, तो 0 मीन्स यहाँ पे हम डेल n लिखेंगे, इम्पल्स फंक्शन। सो तुम लोगों का एक टास्क है, x ऑफ n, ये x ऑफ n है, सो फाइंड आउट x ऑफ z क्या होगा। इसको पहले दिखाओ तो देखोगे उसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। सो 1 अगर है तो डेल n लिखेंगे, बाकी जितना भी वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे इस फॉर्मेट में। आप समझ में आया, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड? अगर यस तो मैं और एक टर्म पे जाऊंगा। ये समझ में आया? आया सर। ओके, नाउ मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन मैंने छोड़ा हुआ था दैट इज ये वाला पोर्शन, इसको पहले कंप्लीट करूंगा, ये सॉरी दैट वन, दैट इज इसको पहले मैं कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पे देखो C1 C2, ठीक है, C1 C2 दोनों कांस्टेंट है। मैंने इस तरह से कैलकुलेशन किया हूं, जब C1 करूंगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट को मल्टीप्लाई करूंगा एक z बाई जेड से, होल का क्या होगा तब z इक्वल टू 1/a, सो z इक्वल टू 1/a में इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा -1/a माइनस 1 माइनस a इंटू 1 माइनस a स्क्वायर। C2 में भी सेम थिंग होगा, C2 जब कैलकुलेशन करूंगा इसका डिनोमिनेटर पार्ट को मल्टीप्लाई करूंगा एक z बाई जेड के साथ, एट पोल इक्वल टू z इक्वल टू a, ठीक है, इसका पोल z इक्वल टू a है। तो नाउ कैलकुलेट करने के बाद मेरा ये वैल्यू आया है। नाउ अगेन आई विल राइट द इक्वेशन by putting the value of C1 and C2. So xz by z, continuation of first problem, ठीक है। xz, that is the main disadvantage of online class, ठीक है, क्योंकि I don't know whether you can understand until and unless I am going to confirm from your end, ठीक है, जो ऑफलाइन क्लास में। दैट्स व्हाई मैंने जेड ट्रांसफॉर्म में इक्वेशन बहुत ही कम है, कैलकुलेशन पार्ट कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, इसीलिए ऑनलाइन सेशन जो भी आ रहा है वहां पे मैंने जेड ट्रांसफॉर्म पहले पकड़ा, ताकि कैलकुलेशन पार्ट कम हो, तुम लोगों को उतना दिक्कत ना हो। और अगर जैसे ही कॉलेज खुलेगा आई विल गो फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म, बिकॉज these two transform function has very large amount of numerical analysis as well as calculation, ठीक है। सो नाउ x ऑफ z बाई z, इसको हम कैसे लिखेंगे अब, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 C2। सो C1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, C1 का वैल्यू है तुम्हारा, सॉरी, C1 का वैल्यू है -1/, हाँ ठीक है, हो जाएगा। सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू, C1 का वैल्यू है
माइनस 1 बाई a इंटू 1 माइनस a स्क्वायर बाई z माइनस 1 बाई a, ये है मेरा C1 का वैल्यू, प्लस C2 का वैल्यू क्या है, a बाई 1 माइनस a स्क्वायर बाई z माइनस a। नाउ ये हो गया मेरा वैल्यू, ठीक है। सो नाउ मैं क्या करूंगा, अब इसको z के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड को, तो मुझे x ऑफ z मिल जाएगा। तो x ऑफ z मुझे जैसे ही मिलेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, z इंटू a 1 माइनस a स्क्वायर z माइनस 1 बाई, ठीक है, प्लस a z 1 माइनस a स्क्वायर z माइनस a, ठीक, ये दो वैल्यू आएगा। नाउ अब आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस, कि z जो भी है टर्म उसको एक साइड करेंगे, तो माइनस 1 बाई a 1 माइनस a स्क्वायर इंटू z माइनस 1 बाई a प्लस a इंटू 1 माइनस a स्क्वायर इंटू z बाई z माइनस a। सो नाउ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस की जरूरत है। 1 माइनस सॉरी a इंटू 1 माइनस a स्क्वायर इंटू 1 बाई, ठीक है, 1 माइनस 1 बाई a z टू द पावर माइनस 1। कैन आई राइट दिस? Yes, sir. नेक्स्ट इज प्लस 1 माइनस a स्क्वायर 1 बाई 1 माइनस a टू द पावर z माइनस 1, ठीक है, हो गया। आई कैन राइट दिस, यस और नो? कैन आई राइट दिस? Yes, sir. नाउ कंपेयर दिस, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे x ऑफ n अगर a टू द पावर n un है, देखो x ऑफ n इक्वल टू a टू द पावर un है, देन x ऑफ z क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 बाई 1 माइनस आर, दैट इज 1 बाई 1 माइनस a टू द पावर माइनस z, सॉरी a टू द पावर z टू माइनस 1, तो इसका मेरा वैल्यू आएगा 1 बाई 1 माइनस ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो मुझे ये इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन x ऑफ n का वैल्यू क्या आएगा, ये कांस्टेंट पार्ट है, सो आई विल राइट दिस पार्ट इन दिस फॉर्मेट 1 माइनस a स्क्वायर इनटू, यहाँ पे देखो इसके साथ इसको कंपेयर करो, इसके साथ इसको कंपेयर करो, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आएगा, 1 बाई a, सो 1 बाई a टू द पावर n un प्लस a बाई 1 माइनस a स्क्वायर इनटू, ये देखो ये वाला पोर्शन सेम है, तो a टू द पावर n un, ठीक है, समझ में आया? नाउ बुक में तुम लोगों को क्या मिलेगा कि ये माइनस सिंबल उठा दिया, ठीक है, तो ये तुम माइनस सिंबल रख सकते हो, एल्स अगर तुम चाहो ये माइनस सिंबल को उठा दे, तो इफ माइनस u of n it can be write as u of minus n minus 1, it can be written like this, ठीक है। इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेना, ठीक है, पहले डिले करना फिर इसको वेरीफाई कर लेना कि कैसे आ सकता है। मैं ये लिख दिया हूँ बिकॉज ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट टाइम रिवर्सल एज वेल एज टाइम शिफ्टिंग, सो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन फाइंड आउट। सो अगर तुम क्वेश्चन में आंसर में यहाँ तक लिखोगे यू विल गेट द फुल मार्क्स, और इसको अगर इसमें कन्वर्ट करके लिखोगे दैट इज
1 by a into 1 minus a square 1 by a to the power n u of minus n minus 1 plus a by 1 minus a square a to the power n un. Also you will get the full marks. So don't bother about this. अगर यहाँ पे तुम लोग का यहीं तक आता है तो यहीं तक रख दो, क्योंकि बाई चांस अगर यहाँ पे माइनस एन माइनस वन के जगह एन माइनस वन लिख दिए तो पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा. सो डोंट डू दिस. बुक में एक स्टेप जाके ये वाला पोर्शन लिखा है, बट यू कैन राइट अप टू दिस, ये भी सही है. ठीक है. सो यहाँ तक सबको समझ में आया? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? डाउट नहीं है, बस कुछ पूछना था सर. हाँ बोलो. सर वो जो कटता है वो मतलब जैसे इक्वेशन नहीं कट रहा था सेकंड थर्ड स्टेप में, एक बार C2 का कट रहा था, C2 के नीचे वाला कट रहा था, एक बार थर्ड स्टेप में C3 के नीचे वाला कट रहा था. वो कटता फिक्स है क्या? वो फिक्स कटता ही है क्या हर इक्वेशन में? पार्शियल फ्रैक्शन तुम प्रॉब्लम किए हो +2 या ये डिप्लोमा में या 10th में क्या आता था? सपोज कटता ही है ना, मतलब एक इक्वेशन. हाँ, जैसे मैं दिखा रहा हूँ. सपोज यहाँ पे दिया हुआ है 3/6 3/8 ये दिया हुआ. तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? C1/6 प्लस C2/3. दैट मीन्स C1/6 प्लस C2/3 इसका समेशन होगा दिस वन. ठीक है. तो अगर हम इसको लिखेंगे तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, लेट इट बी x ऑफ n, लेट इट बी. ठीक है. मैं ये दूसरा इक्वेशन है. ठीक है. इसके साथ z ट्रांसफॉर्म का कोई साथ नहीं है, तो मैं इसको इस हिसाब से लिख रहा हूं. तो मैं अगर C1 निकालूंगा, C1 इक्वल टू 6 इंटू xz एट z इक्वल टू xz एट, पहले हम लोग इस हिसाब से देखते हैं. तो xz का वैल्यू क्या है? 6 इंटू 3/6 इंटू 3, तो इसका वैल्यू 1. ठीक है. C2 का वैल्यू 3 इंटू xz, तो 3 इंटू तुम्हारा 3 इंटू 6 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ गया 1/2. So now your equation will be 1/6 plus 1/2/3 equal to 1/6 plus 1/6. देखो आंसर वही आएगा. ठीक है. इसका फॉर्मेट यही है. ठीक है. 1/6 इंटू 1/6, तो ये आ जाएगा 2/6. नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मेट लिया नहीं. z अगर लूंगा तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगा. ठीक है. तो मैं यहाँ पे z का वैल्यू कोई लिया नहीं हूँ, दैट्स वाई मेरा इक्वेट नहीं हो रहा है. ठीक है. सो फंडा क्या है? मेरा जो इक्वेशन आएगा ये दो पार्ट में है. एक है न्यूमरेटर पार्ट, एक है डिनोमिनेटर पार्ट. सो न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट को अगर हम ब्रेक करेंगे, सो d1z प्लस C2d2z, इस हिसाब से अगर डिवाइड करेंगे तो मुझे C1 और C2 कांस्टेंट पार्ट है. सो इस कांस्टेंट पार्ट को कैलकुलेट करना है मुझे. सपोज इसको अगर तुम x इंटू वाई कर दो तो देखो वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. तो एक बार कोशिश करना ये नॉर्मल इक्वेशन को इस हिसाब से पुट करके. ठीक है. एक बार कोशिश करना. ठीक है. और मैं ये दे रहा हूँ, रुको. नॉर्मल सिंप्लीफाई एक इक्वेशन में दे रहा हूँ, नॉट z ट्रांसफॉर्म. ठीक है. that is 3/6 minus z 2 minus z, इस हिसाब से. और z minus 2 सॉरी z minus 2 and z minus 3. ठीक है. इस हिसाब से पुट करके मुझे C1 और C2 का वैल्यू एक बार निकाल दो. ठीक है. तो तुमको समझ में आएगा. तो देखो अगर मैं डिनोमिनेटर पार्ट हूं तो ऑब्वियसली दिस इज द एडिशन ऑफ टू पार्ट्स. ठीक है. एक्चुअली C1 इंटू d2z प्लस C2 इंटू d1z बाई d1z इंटू d2z, ये होता है मेरा एक्चुअल, दैट इज x ऑफ z.
ठीक है। तो मैं अब C1 को निकालूंगा, तो C1 का जो न्यूमरेटर पार्ट है, एक्चुअली मल्टीप्लाई करने का मेन फंडा क्या है या मेन रीजन क्या है, देखो मैं अगर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई अगर नहीं कर रहा हूं तो क्या होगा, ये z पोर्शन यहाँ पे है, तो मैं डिनोमिनेटर पार्ट में भी z पोर्शन है, तो मैं डिनोमिनेटर पार्ट से ये इक्वेशन से z पोर्शन को हटाऊंगा, ठीक है, हटाऊंगा। दैट्स व्हाई आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन सिंपली। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करता हूं तो C1 का वैल्यू क्या आएगा अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है, तो C1 का वैल्यू आ जाएगा x ऑफ z बाई z एट z इक्वल टू 0। तो देखो एट z इक्वल टू 0, अगर इसमें मैं z इक्वल टू 0 बैठा दिया तो क्या होगा, समथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या आएगा, समथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या आएगा, क्या आएगा, कुछ डिवाइड 0 से डिवाइड अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा, if I will divide something with 0 then what value will come, 0 or infinity, am I audible, hello, hello, am I audible, hello, am I audible to everyone, Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो देखो वहां पे z इक्वल टू 0 मुझे बैठाना पड़ेगा, अगर z इक्वल टू 0 मैंने बैठा दिया तो इंडिफिनाइट टर्म आ जाएगा, अनडिफाइंड टर्म आ जाएगा, तो z को कैंसिल करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, C1 में z को कैंसिल करने के लिए z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, C2 में इस पोर्शन को कैलकुलेट करने के लिए कैंसिल करने के लिए z माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट इट कैन बी कैंसल्स आउट, अदरवाइज z इक्वल टू 2 अगर यहाँ पे बैठा हुआ तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ताकि ये टर्म ना रहे इसीलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस टर्म को कैंसिल आउट कर रहा हूं, ठीक है। तो स्टेप में एक बार समराइज कर दे रहा हूं, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आई थिंक नेक्स्ट क्लास है तुम लोगों का अमित सर का, ठीक है, तो एक मिनट रुको, मैं एक बार सर से बात कर देता हूँ कि 2 मिनट लगेगा, एक्स्ट्रा 2 मिनट लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, एक मिनट तो फोन कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके, आई थिंक योर क्लास इज गोइंग ऑन, ठीक है, तो अमित सर ले रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, Okay. Okay, sir. हाँ 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 Thank you, sir. हाँ, Thank you, sir.